ہماری والدہ ایک آنکھ سے محروم ہو گئی ہیں، ان کی آنکھ کی بالکل بینائی ختم ہو گئی ہے، ایک آنکھ سے وہ بلائنڈ ہو گئی ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک بہت بڑا عیب پیدا کیا ہے اس شخص کی لاپرواہی نے کہ ہمیں ان کی آنکھ نکالنی پڑ جائے۔ انفیکشن اتنا سویئر ہوا ہے ان کو کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ نکالنی بھی پڑ سکتی ہے، اور اگر وہ آنکھ نکالیں گے تو اس کی جگہ پہ پتھر کی آنکھ لگے گی۔ میں صرف انصاف کی اپیل کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ پچھلے دنوں گزشتہ ماہ کی 19 تاریخ کو میری والدہ نے کمپلین کی، آنکھ میں تھوڑی تکلیف کی، تو ہم اپنی والدہ کو لے کے، میرے بڑے بھائی میرے ساتھ ہیں، والدہ کو لے کے ہم لوگ ڈاکٹر سلیم اکرم زور کوٹ پل پہ، ان کا نہر کنارے پہ ہاسپٹل ہے، اکرم آئی ہاسپٹل، وہاں پہ لے کے گئے۔ وہاں پہ لے کے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے جاتے ہی کہا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ کیا ہو موتیا آپ کا؟ وہ کہتے جی سفید موتیا بالکل پک چکا ہوا ہے، اس کا فوری طور پہ آپ آپریٹ کروائیں، ورنہ آپ کا موتیا پھٹ جانے کی وجہ سے آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ ہم پریشان ہو گئے، والدہ کی آنکھ کا مسئلہ تھا، ہم بھائیوں نے وہیں پہ اسی ٹائم ان کو 1,10,000 روپے فیس دی اور ان سے اپنی والدہ کی آنکھ کا آپریٹ کروایا۔ آپریشن کے فوراً بعد ہی میری والدہ نے آنکھ میں چبھن کی شکایت کی، نظر نہ آنے کے بابت شکایت کی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کل تک ٹھیک ہو جائے گا، آپ کل دوبارہ آ جائیں۔ اور اس وقت انہوں نے ہمیں آپریشن کے ٹھیک کوئی 15 سے 20 منٹ بعد ہمیں ہاسپٹل سے فارغ کر، جبکہ انہوں نے جو ڈسچارج سلپ بنائی ہاسپٹل کی وہ یہ بنائی کہ جو انہوں نے 19 تاریخ کو ہمیں ایڈمٹ کیا اور 20 تاریخ کو ہمیں ڈسچارج کیا۔ پہلی بدنیتی ڈاکٹر صاحب کی یہاں پہ کہ ہمیں 15 منٹ بعد فری کر دیا، جبکہ اپنے ڈاکیومنٹس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم نے اگلے دن ان کو چھٹی دی ہے۔ یہ ان کی ڈیوٹی بھی بنتی تھی کہ پیشنٹ کو کم از کم 24 گھنٹے اپنے پاس آبزرویشن میں رکھیں، پیشنٹ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہاں پہ ہاسپٹل میں سہولیات ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں گھر روانہ کر دیا۔ اس بابت ان کا جو ہاسپٹل کا سی سی ٹی وی ریکارڈ ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ اس بابت میں نے ان کو لیگل نوٹس بھی دیا ہوا ہے کہ آپ اپنا سی سی ٹی وی ریکارڈ سنبھال کے رکھیں، اگر آپ کا سی سی ٹی وی ریکارڈ اس بات سے میچ نہیں کرے گا تو ساری بات کلیئر ہو جائے گی، اگر آپ ریکارڈ پیش نہیں کریں گے تو یہ پھر آپ کی بدنیتی ہوگی، آپ کے اگینسٹ استعمال ہوگا۔ تو 20 تاریخ کو ہماری والدہ کو جب دوبارہ چیک کیا تو انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے خود کہا جی فائن سرجری ہوئی ہے، بہت بہترین ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میری والدہ مسلسل تکلیف کی، درد کی شکایت کرتی رہی۔ اگلے دن انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک دن چھوڑ کے چیک کروا لیں، لیکن اگلا دن جمعے کا تھا، میں بات کر رہا ہوں 21 تاریخ، جمعے کا دن تھا۔ جمعے والے دن انہوں نے، میرے بھائی نے ان کے ریسپشنسٹ کو، بلاول اس کا نام ہے، اس کے نمبر پہ کال کی اور کہا کہ جی ہماری والدہ کو تکلیف ہے، ہم ان کو چیک کروانا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ۔ تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مصروف ہیں، جمعے کا دن ہے، ڈاکٹر صاحب نہیں مل سکیں گے۔ ایسے انہوں نے ٹال دیا اور ہم نے پین کلر کھا کے، کھلا کے، 2 مرتبہ کال کی۔ ایک مرتبہ جب میں نے کال کی تو وہ کہتے نہیں ٹائم مل سکتا، پھر میں نے دوبارہ کال کی، میں نے کہا سر امی کی طبیعت جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ بہت خراب، نہیں یہ جو ہے عام سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، ان کو پین کلر دے، پین کلر۔ پھر اگلے دن جب ہم سیٹرڈے کو لے کے اپنی والدہ کو ان کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب دیکھ کے کہتے ہیں سوری یار، اس میں آنکھ میں تو انفیکشن ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب انفیکشن ہو گیا، ہم آپ کو بتا رہے تھے، پہلے سے آپ کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے، آپ نے اگلے دن بھی چیک کیا، کہتے وہ تو معمولی سا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو پھیل گیا۔ اچھا جی پھیل گیا، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کیا کریں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم ان کی آنکھ میں ایک انجیکشن لگائیں، ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اب ہم اس پہ انکار نہیں کر سکتے تھے، ہم نے وہاں پہ ان سے وہ پروسیجر بھی کروایا۔ اس پروسیجر کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ پھر آنکھ میں دوسری دفعہ انجیکشن لگایا اور ہمیں تسلی دی کہ انفیکشن ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بارہا یہ ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اپنی والدہ کو کسی اور بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں، کسی اور بڑے سرجن کے پاس لے جائیں، کسی ملک کے اندر یا ملک سے باہر کہیں پہ بھی آپ کہتے ہیں ہم اپنی والدہ کو لے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی جب تک انفیکشن ٹھیک نہیں ہوتا تب تک آپ مریض کو سفر نہ کروائیں، ٹریول نہ کرے آپ کا مریض، اور جب تک ان کا انفیکشن ٹھیک نہیں ہوتا تب تک ان کی آنکھ کا کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا۔ خیر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آج لے آئیں، کل لے آئیں، پرسوں لے آئیں، اس طرح کرتے کرتے ڈاکٹر صاحب نے ہمارے تقریباً 15 دن ضائع کیے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جب عید کے بعد دیکھا تو ہمیں کہتے کہ جی آپ ان کو اب 15 دن کے بعد لے آئیں، اب انفیکشن ٹھیک ہے، کافی بہتر۔ اس کے بعد ہم اپنی والدہ کو لے کے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد گئے ہیں، وہاں سے جا کے راول پنڈی میں شفا ٹرسٹ سے ہم نے چیک کروایا۔ ستارہ امتیاز ہیں جو ڈاکٹر جن کو ہم نے چیک کروایا، ان ڈاکٹرز کو جب ہم نے چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ جب ابتدائی طور پہ انفیکشن ہوتا ہے، پہلی تو بات یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ڈرا کے آپریٹ کی طرف لے کے آئے ہیں کہ موتیا پھٹ جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔
उन्होंने कहा मोतिया आंख में फटता नहीं है। दूसरी बात उन्होंने जो हमें की वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो इंजेक्शन आंख में लगता है ये सिर्फ एक दफा लगता है, आपका 2 दफा लगा हुआ है। तीसरी बात, इस इंजेक्शन के बाद अगर आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं होता तो फौरी तौर पे इसकी सर्जरी की जाती है। डॉक्टर साहब को इस सर्जरी के बारे में बखूबी इल्म है, पढ़े लिखे हैं, अपनी फील्ड को जानते हैं। इन्होंने ना हमें सर्जरी सजेस्ट की और ना ही हमें किसी और जगह पर चेकअप के लिए जाने दिया। उस सारी बात की वजह ये थी कि डॉक्टर साहब ने अपनी सर्जरी के दौरान अनस्टेरिलाइज्ड, जरासीम से पाक किए बगैर इक्विपमेंट्स उन्होंने इस्तेमाल किए। उनके सारे औजार जो उन्होंने इस्तेमाल किए उनमें से मोस्टली आप ये देखें कि मेरी वालदा से पहले जो उन्होंने ऑपरेट किया, मेरी वालदा बताती हैं कि उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं और उस बंदे को सीट से उठा के बाहर किया, मेरी वालदा को वहां पे लिटा लिया और उन्होंने अनस्टेरिलाइज्ड जो उनके थे इक्विपमेंट्स वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैला है। अब जो हमें जिन डॉक्टर्स को हम इस्लामाबाद में रावलपिंडी में जाके मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दिखा के हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये जो इन्फेक्शन होता है आंख में, ये सर्जरी की वजह से होता है या ट्रामा की वजह से होता है। अब ट्रामा जो है वो आउटर फोर्स है, बाहर से आके कुछ चोट लगी है, कुछ जख्म हुआ, उसकी वजह से होता है, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो ये उन्होंने सब ने यही सजेस्ट किया कि ये इन्फेक्शन सर्जरी के दौरान हुआ है और जो डॉक्टर साहब ने हमें अपनी वालदा को प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉपर इलाज की सहूलियात तक पहुंचने में जो उन्होंने हर्डल हमारे लिए क्रिएट की, जो हमें बार बार कहते रहे कि इस इन्फेक्शन में आप ट्रेवल कराएंगे आपकी आंख जाया हो जाएगी, हमें बार बार ऐसे कहते रहे, उसकी वजह सिर्फ ये थी ये किसी जगह पे लेके जाएं और कोई जो हमारी फील्ड का एक्सपर्ट बंदा वो इनको मेरी गफलत लापरवाही के बारे में ना बता दे। इस तरह से उनकी जो गफलत थी, उस गफलत को उन्होंने, मुजरिमाना गफलत थी उनकी, जिसकी वजह से हमारा इररिपेयरेबल लॉस हुआ है, ऐसा नुकसान जिसकी कतई कोई तलाफी नहीं हो सकती। हमारी वालदा एक आंख से महरूम हो गई हैं, उनकी आंख की बिल्कुल बेनाई खत्म हो गई है, एक आंख से वो ब्लाइंड हो गई हैं, एक आंख से। और उनकी आंख की ये कंडीशन हुई है कि डॉक्टर सब जो बताते हैं, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो कहते हैं इस आंख का ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता है कि हम कोई नई आंख डलवा लें उस आंख की जगह पे, कोई डोनर हमें मिल जाए तो वो भी नहीं हो सकता। इस इन्फेक्शन का वेट करने की वजह से, इसको डिले करने की वजह से, जो डॉक्टर साहब ने हमारे लिए डिले, ये इन्होंने सारा डिले डॉक्टर साहब ने किया है, डॉक्टर सलीम अकरम साहब की बात कर रहा हूं, उन्होंने सारा डिले किया है, सिर्फ इसलिए किया है कि ये कहीं पे जाके मेरी ये गफलत कोई ना इनको बता दे कि ये उनकी गफलत और लापरवाही की वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हम इस अजियतनाक वक्त से गुजर रहे हैं। हमारी वालदा के लिए हर वक्त हमें उनके साथ ख्याल करने के लिए साथ रहना पड़ता है। 65 साल रिटायर्ड वालदा है मेरी, इंतहाई शाइस्ता औरत है। उनकी शख्सियत में एक बहुत बड़ा ऐब पैदा किया है इस शख्स की लापरवाही ने। मैं सिर्फ इंसाफ की अपील के लिए यहाँ पे आया हूँ, आप तमाम सहाफी भाइयों के सामने मैं ये सारी सिचुएशन रखता हूँ, सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। डॉक्टर साहब ने किस तरह से लिखा कि मैंने इनको 20 तारीख को डिस्चार्ज किया, जबकि 15 मिनट के बाद उन्होंने हमें अस्पताल से रवाना कर दिया और सीसीटीवी रिकॉर्ड उनके पास है। उन्होंने पहले दिन से सिर्फ अपने हॉस्पिटल के रूम का पंखा और लाइट का खर्चा बचाने के लिए, जिसके पैसे उन्होंने हमसे पहले से लिए हुए थे कि पेशेंट रात को यहाँ पे रहेगा, कोई ना कोई बंदा आएगा यहाँ पे, इसके पास रुकेगा, पंखा चलेगा, लाइट चलेगी, उसका बिल आएगा, इस वजह से उन्होंने मेरी वालदा को रात वहां पे नहीं रखा और डॉक्यूमेंट्स में लिखा कि मैंने 24 घंटे इनको यहाँ पे रखा है। उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। ये ज्यादती नहीं है, ये जुल्म है, उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है। इसके लिए मैं उनके खिलाफ जो है मैंने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में एक कंप्लेंट लॉन्च कर दी है। इसके अलावा मैंने उनको लीगल नोटिस भी अरसाल कर दिया है कि उन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की है। मैं इंसाफ की अपील के लिए तमाम साफी भाइयों के सामने आया हूँ। डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि इसमें हो सकता है कि हमें उनकी आंख निकालनी पड़ जाए। इन्फेक्शन इतना सवियर हुआ है उनको कि जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि इनकी आंख निकालनी भी पड़ सकती है और अगर वो आंख निकालेंगे तो उसकी जगह पे पत्थर की आंख लगेगी। अब आप लोगों ने सब ने अपनी जिंदगी में लोग देखे होंगे, क्या पर्सनैलिटी होती है उन लोगों की, उनकी पर्सनैलिटी में कितना बड़ा फ्लॉ होता है उन लोगों के, जिन लोगों की एक आंख नहीं होती और उस आंख की जगह पत्थर की आंख लगी हुई होती है। इंसान की शख्सियत में बहुत बड़ा दाग है। उन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की। उनकी बदनीयती वो पहले दिन से जाहिर है। जब उन्होंने ठीक 15 मिनट के बाद अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया है तो फिर उनको जो डिस्चार्ज स्लिप का डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर 20 तारीख लिखने की क्या जरूरत थी। असल में जो रूल्स है ना बनाए हुए पीएमडीसी ने, वो उन्होंने ये बनाए हुए हैं कि जिनकी आपने आंख की सर्जरी करनी है उनको 24 घंटे अपने पास ऑब्जर्वेशन में रखना है। अब ये डिस्चार्ज स्लिप है, इस पे डिस्चार्ज तारीख 20 तारीख की लिखी हुई है।
मैं अर्ज कर रहा हूं कि जी उनके हॉस्पिटल का उनका रिकॉर्ड, उनके लगाए हुए कैमरे, वो उनको संभाल के रखे, उनको जाया ना करे उसका सीसीटीवी रिकॉर्ड, उसमें वादे हो जाएगा कि उन्होंने जब हमारी सर्जरी की है, सर्जरी के लिए हम लोग आए हैं, 20 मिनट बाद उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया हॉस्पिटल से, भाई आप चले जाएं। उस वक्त तो हम एतमाद करते हैं सब लोग, जब कोई बंदा किसी डॉक्टर के पास जाता है, उसके पास किसी वकील के पास जाता है, तो बंदा उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। लोग जाके खाली कागजों में भी साइन करके उनको दे देते होते हैं, खाली फॉर्म्स के ऊपर साइन करके दे देते होते हैं। ये डिस्चार्ज स्लिप हमने तो उस वक्त ट्रस्ट के पेश नजर नहीं देखा, लेकिन जब हम वहां पे गए जाके इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हमने चेक करवाया, तब हमें उन्होंने बताया कि ये सारा कुछ उन्होंने पहले दिन से ये बदनीयती रखी है। जी वो एक टेस्ट उन्होंने इस दौरान करवाया था। आपने अच्छा सवाल पूछा सर। टेस्ट उन्होंने करवाया था शौकत खानम हॉस्पिटल से, वो जो इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन की जो उन्होंने पस या कोई वहां से स्वैब कुछ लिया, तो उसको उन्होंने रिपोर्ट हमें कहा जी आप शौकत खानम हॉस्पिटल से करवाएं। वो हमने शौकत खानम हॉस्पिटल से करवाई। वो रिपोर्ट उनको 48 घंटे में डॉक्टर साहब को मौसूल हो गई, और 48 घंटे के बाद उस रिपोर्ट से डॉक्टर साहब को इन्फेक्शन की सिचुएशन, हर चीज, सारी बात उनको क्लियर हो गई थी, और उनको समझ आ गई थी ये वो शौकत खानम हॉस्पिटल की रिपोर्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। अब इस रिपोर्ट को पढ़ के भी डॉक्टर को बिल्कुल पता था कि इसकी सर्जरी ड्यू है, ये सर्जरी अब करनी पड़ेगी, लेकिन उस सर्जरी की चूंकि इसके पास सहूलत नहीं थी इनके पास, और इन्होंने आगे इसलिए नहीं जाने दिया कि आगे जाएंगे तो वो लोग बताएंगे कि इस डॉक्टर साहब की वजह से, इनके अनस्टेरलाइज्ड औजार की वजह से आपकी आंख में इन्फेक्शन हुआ है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब सारा कुछ जानते हुए डॉक्टर साहब ने अपना हमारा टाइम जाया किया है। अफसोस इस बात का नहीं है हमें कि मामला जिंदगी में हो जाते हैं, लोगों के ऑपरेशन खराब हो जाते हैं। हमारा ऑपरेशन खराब हो गया, हम पहले दिन डॉक्टर साहब के साथ कोई लड़े नहीं है, ना हमने डॉक्टर साहब से किसी किस्म का कोई तकाजा किया है, ना हमने डॉक्टर साहब को यही कहा कि भाई हम इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं, हमारा किराया आप भर दो। इस तरह की कोई बात नहीं है। हमें कोई डॉक्टर साहब से ना कोई लालच था, ना कोई इस किस्म का इशू था। हमें दुख सिर्फ इस बात का है कि आपसे गलत हो गया था, आप हमें बता देते भाई हम मुझसे गलत हो गया है। आप ये ना लेते अपने ऊपर, आप वैसे बताते हुए भाई ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, आपके पेशेंट की आंख जाया है, आप इस बंदे ये अभी अभी इसका इलाज। अब जो इस्लामाबाद वाले डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि जब तक धूप छांव आपको आंख में महसूस हो रही थी तब तक इसकी सर्जरी हो सकती थी, और वो तकरीबन 10 दिन हमारी वालदा को महसूस होती रही है धूप छांव। इन्होंने कहा कि जी इन्फेक्शन ठीक होगा तो फिर जाएंगे। इन्होंने सिर्फ अपनी गफलत को छुपाने के लिए जो हमें हमारे साथ ये टैक्ट खेला है डिले वाला कि आप इस इन्फेक्शन में सफर ना करवाएं, और हमारे पेशेंट को प्रॉपर इलाज की जगह पे इन्होंने पहुंचने नहीं दिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह हैसियत रखते थे दोनों भाई, हम लोग अपनी वालदा को लेके पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, पाकिस्तान से बाहर भी किसी भी जगह पे लेके जा सकते थे। दुख सिर्फ इस बात का है कि आज हम लोग बेबस हुए बैठे हैं। हम लोग अपनी करोड़ों रुपए हाथ में लेके बैठे हुए, अपनी वालदा का इलाज करवा ही नहीं सकते। उन्होंने हमें खींच के ला के उस स्टेज के ऊपर खड़ा कर दिया कि जहां पे इलाज ही कोई नहीं है। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, हमें तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि हमें आपने इलाज से महरूम रखा। आप हमें पहले दिन भेज देते, हम वहां पे चले जाते, हम एक जगह पे पहुंच जाते उस इलाज का, हम अपने दिल में तो मुतमईन होते कि हमने अपना पूरा इलाज करवाया। जब आपने हमारे साथ ये किया और वो हमें जाके कहेंगे काश आप आज से 5-10 दिन पहले जब आपको धूप छांव महसूस हो रही थी आप आ जाते, तो आप सोचें जिस बेटे की वालदा की आंख गई है उसके दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये मुझे पता है या मेरे भाई को पता है, हम लोग किस भारी दिल के साथ बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज कि हमारी आवाज को हुकाम बाला तक पहुंचे।